Hello students. So my channel Clear Your Doubt CYT is going to help JEE students, mains and advanced both, with their doubts in physics and mathematics, and NEET UG student with their doubt in physics, right? So if you are a student for JEE or NEET, you can ask me any doubt regarding your subject, concept, or any question that you are facing problem with from previous year question or any doubt. Just join a Telegram channel. So link for Telegram channel is given in the description, or you can just write your doubt in the comment section of any of my videos, and I will help you out with that doubt. So for example, this question has been asked by one of the JEE aspirant. So it is based on circular permutation and arrangement belonging to permutation and combination chapter. So let's just do this question, right? So a gentleman invites a party of m plus n friends to a dinner and places m at one table and T1, the table is T1, and n person at another table T2, table being round. Okay. Now, if not all people shall have the same neighbor in any two arrangement. So this is the important part that you need to focus. If not all people shall have the same neighbor in any two arrangement. Okay. So you really have to understand, you really have to read this part multiple times before you understand, before you delineate what it means. इसका मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा, कई बार पढ़ के you can do that. Then the number of ways in which he can arrange the guest is. So four options were there. I haven't written the options, so let's get that answer to you. Okay. So इसमें circular arrangement में, circular permutation में, you must understand one thing, that before arranging, okay, before doing the permutation, what you do, you fix one person. So let's say three people are there, or four people, you can say A, B, C, D, right? So four people are there, you fix one person. Let's say the A is going to be fixed. You can fix any other person, and then you arrange the next rest of them. So how many arrangements are there? Factorial 3. So in terms of formula, if n people are there, so for circular permutation, what you do? You take factorial n minus 1, right? For example, 4 people were there, so this factorial 3 was actually factorial 4 minus 1, right? So this is the arrangement. Now you must understand factorial 4 minus 1 comprises of two arrangements. That two arrangement is being talked about here. उसी two arrangement के बारे में बात हो रहा है. आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि these two arrangement are related to two tables. नहीं, ये दो अरेंजमेंट की बात हो रही है. फर्स्ट अरेंजमेंट इज क्लॉकवाइज एंड सेकंड अरेंजमेंट इज काउंटर क्लॉकवाइज. सो ये जो है ना फैक्टोरियल 4 माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1, दिस कंप्राइजेज बोथ सर्कुलर क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज. इसमें दोनों आता है. नाउ कब दोनों आएगा? जब ये काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जब डिफरेंट होंगे, देन दे विल बी काउंटेड एज सेपरेट. ओके. अब आप एक बात बताओ, अगर क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज विल बी सेम, तो ये फैक्टोरियल n माइनस 1/2 नहीं हो जाएगा? आप दो बार क्यों काउंट करोगे एक ही चीज, राइट? सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट वुड बी जस्ट हाफ ऑफ टोटल. ओके. यही इतना कॉन्सेप्ट था इसमें. और एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा, दैट वुड बी सेलेक्टिंग n out of m plus n. So if you are selecting n people out of m plus n, or you can say if you are selecting 5 people out of 10, what would that be? 10c 5. You are trying to select 5 people out of 10. So 10c 5 would be the number of ways you can select. Okay. चलो क्वेश्चन करते हैं. राइट. क्वेश्चन में लिखा है कि एक जेंटलमैन है जो m प्लस n लोगों को इनवाइट करते हैं अपने डिनर पार्टी के लिए, राइट? और उनमें से m लोगों को एक टेबल पे बैठाते हैं, n लोगों को एक दूसरी टेबल पे बैठाते हैं, और m और n इक्वल नहीं है. ओके. अब मैं इस पार्ट का मतलब समझाता हूँ. इफ नॉट ऑल पीपल्स हैव द सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी लोग बैठ सकते हैं. यहाँ पे मान लो एक टेबल ये हुआ, सर्कुलर टेबल आप ले लो. forgive me, it doesn't look like a circle, but anyway. तो मान लो यहाँ पे A है, B,
सी डी। तो कहने का मतलब डी का जो नेबर है अभी, काउंटर क्लॉकवाइज गिनो, एक अरेंजमेंट, सॉरी दिस वुड बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज गिनो। तो जो बी का नेबर है और भी ले लो यहाँ पे, ई एफ, यहाँ जी ले लो, यहाँ एफ ले लो, राइट। सो काउंट क्लॉकवाइज में जो बी के नेबर हैं एफ और जी, ओके, वो काउंटर क्लॉकवाइज में वो नहीं रहेगा तब भी चलेगा। मतलब काउंटर क्लॉकवाइज में अगर जाओ आप, ये वाला, ठीक है, काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज में जाओगे तो क्या हो जाएगा, बी का नेबर यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इट डजंट डिपेंड कि काउंटर क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। तो आपको क्या करना है, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम लेना है। दिस वाज काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस वाज क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। इफ नॉट ऑल पीपल शैल हैव द सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट, एनी टू टेबल नहीं बोला यहाँ पे, एनी टू अरेंजमेंट बोला है, राइट। तो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका बस ये मतलब हुआ। अब आपको क्या करना है, आप एक काम करो, कितने अरेंजमेंट पूछा ना, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन अरेंज द गेस्ट, गेस्ट को, उस जेंटलमैन को, गेस्ट को अरेंज करना है। तो कितने, पहले वो क्या करेगा, m प्लस n में से कितने को सिलेक्ट कर ले, m को सिलेक्ट कर ले, राइट। चाहे m को सिलेक्ट कर लो चाहे n को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मैंने क्या किया, m लोगों को सिलेक्ट किया, ठीक है। बचे कितने, n, जो n होंगे उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता है ये बताओ। उसको भी टेबल पे ही अरेंज करना है ना, फैक्टोरियल n-1, बट क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है तो अपॉन 2, ठीक है। और जो m इधर सेलेक्ट किया था उसको कितने तरीके से अरेंज करेगा वो बताओ, टेबल पे ही अरेंज करना है, सर्कुलर टेबल पे, तो m-1, लेकिन इसमें भी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है, अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व, आप सॉल्व कर सकते हो, इट्स जस्ट सिंपल मैथ। m प्लस फैक्टोरियल वाली मैथमेटिक्स लगेगी, m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n-m, दैट मीन्स फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m इंटू m-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 एंड फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे, क्या आ रहा आंसर, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। m प्लस n कैसे करोगे, ये फैक्टोरियल m प्लस n को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n को लिख सकते हो n इंटू फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल m को m इंटू फैक्टोरियल m-1 लिख सकते हो, इंटू फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 4 लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4, दिस गोज अवे, this goes away, what are you left with, factorial m plus n upon 4 times m into n. So this is the answer that you are expecting. ऑप्शन में देख लेना, ए पार्ट है, आई थिंक ए पार्ट इज द आंसर, करेक्ट आंसर, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जेई और नीट के स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो, उस पर जस्ट अपना स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच के किताब का, कहीं भी असाइनमेंट शीट का, कोचिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्रीवियस ईयर पेपर का नहीं आ रहा है, जस्ट फोटो खींच के भेज दो ग्रुप पे। मैं ऐसे ही एक अच्छी सी वीडियो इजी तरीके से समझा के बता दूंगा, जो अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, वो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको वीडियो देख के, राइट। और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, दैट्स माय पर्पस, आई वांट टू हेल्प एज मेनी स्टूडेंट एज आई कैन। एंड आप ये वीडियो शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, एंड दे विल सो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज जस्ट you must do it, okay. It will really motivate me and have a great learning. All the best, thank you so much.